السلام علیکم عامر میر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر میر صاحب، بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے حکمرانوں کی طرف سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ بلوچستان میں بیرونی قوتیں مداخلت کر رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب بلوچستان کے دورے پر گئے، وہاں پر دوبارہ اس بات کا برملا اظہار کیا۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کو اور حکمرانوں کے اس موقف کو کہ بلوچستان میں بیرونی قوتیں مداخلت کر رہی ہیں؟ دیکھیں، بیرونی قوتیں تو صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر علاقے میں مداخلت کر رہی ہیں۔ اب ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہے وہ بلوچستان میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسامہ بن لادن بھی ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابھی جو کل انہوں نے 3 امریکی سفارتکار پکڑے، ان کے ساتھ اسلحہ بھی تھا، گاڑیاں بھی تھیں، تو ان کو تو پشاور میں پکڑا، تو ان کو پھر چھوڑ بھی دیا۔ تو بیرونی قوتیں تو پورے پاکستان میں سرگرم عمل ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ بہت سے دوسرے ممالک میں سرگرم عمل ہے، لیکن یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا ان کا موقف ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ اس کو بیرونی قوتوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ 1948 میں جو پہلا آپریشن تھا اس وقت بھی یہی کہا، پھر 1958 میں بھی یہی کہا، پھر 1962 میں بھی یہی کہا، پھر 1973-74 میں پورا ایک ڈرامہ کیا گیا، عراقی ایمبیسی سے اسلحہ پکڑ کے وہ ڈال دیا، حیدرآباد سازش کیس بنا دیا، 2006 میں بھی یہی کیا، ابھی بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا، ہمیشہ جو ہے یہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرتی ہے، اور جب عامر میر صاحب یہاں پہ جس طرح آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا کہ 1948 کے بعد سے بلوچستان میں یہی سے ایک صورتحال رہی، اسی طرح کا ایک رویہ رہا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں اسٹیبلشمنٹ کا ایک مخصوص رویہ بلوچستان کے ساتھ ماضی میں بھی رہا، آج بھی وہ رویہ برقرار ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو فوجی حکمران تھے جنہوں نے یہ ظلم شروع کیا تھا، انہوں نے جو پہلا آپریشن 1948 میں کیا تھا تو اس وقت ان کی جو کمانڈر تھے وہ انگریز تھے، اور انگریزوں کی بلوچوں کے ساتھ ایک پرانی لڑائی تھی، اور جنرل مائیکل ایڈوائر جس نے کہ 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں بہت بڑا قتل عام کیا تھا، اس کو انگریزوں نے 1916 میں بلوچستان بھیجا تھا جب وہ بریگیڈیئر تھا۔ تو یہاں سے مار کھا کے، بلوچستان سے مار کھا کے، یہاں سے ناکام ہو کے وہ واپس گیا، اور پھر اس نے وہ امرتسر میں قتل عام کیا۔ تو جو انگریز تھے انہوں نے بلوچوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت تقسیم کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ تو جو بلوچ قبائل تھے انہوں نے ان کے آپس میں اختلافات تو ہمیشہ رہے، لیکن وہ انگریزوں کے ساتھ بھی لڑتے رہے، اور یہ پرانی لڑائی تھی جس کا بدلہ جب پاکستان بن گیا تو پھر جو انگریز کمانڈر تھا اس کے حکم پر قائد اعظم کی بات بھی نہیں سنی، اور جو جنرل اکبر خان تھا اس نے 1948 میں کلاٹ پر حملہ کر دیا، اور وہ جو پرنس کریم تھا اس کے ساتھ جب مذاکرات شروع ہوئے تو اس کے ساتھ بھی قرآن پاک کے ذریعے اس کو کہا گیا کہ آپ پہاڑ سے نیچے آ جائیں، اور اس سارے آپریشن کی نگرانی ایک انگریز افسر کر رہا تھا۔ پھر بعد میں جب 1955 میں 1 یونٹ کے خلاف بلوچوں نے مزاحمت شروع کی تو اس کے بعد بھی جو نواب نروز خان کی مزاحمت تھی 1958 میں، تو ان کو بھی نیچے لانے کے لیے انہوں نے قرآن پاک کا سہارا لیا۔ تو یہ جو ایک نو آبادیاتی ایک کولونیل سوچ تھی پاکستانی فوج کے ان افسروں کی جو کہ انگریز کے وفادار تھے، تو وہ انہوں نے ان کی نفسیات میں یہ چیز شامل تھی، انہوں نے ورثے میں بلوچ سے نفرت لی کیونکہ وہ انگریز کے وفادار تھے، اور انگریز کی لڑائی بلوچ کے ساتھ تھی، اور وہ جو انگریز کی اور بلوچ کی لڑائی تھی وہ پاکستانی فوج کے جرنیلوں کو ورثے میں ملی، وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ہمیشہ بلوچوں سے نفرت کی، اور پھر وہ نفرت بڑھتے جی عامر میر صاحب، جس طرح آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا، انگریز اور بلوچوں کی لڑائی تھی، اور یہ لوگ جو ہے نا انگریزوں کے حکم پہ، اس کے ہدایت پہ اور عمل اپنا کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کی حکومت کو اگر ہم دیکھیں اس وقت بھی بلوچستان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ پارلیمنٹ میں تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچ لیڈرشپ پارلیمنٹ میں رہی، پاکستان کے حوالے سے یا اس ملک میں اپنے سیاسی کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز یہ نظر آئی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بلوچوں کو ہمیشہ سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، یا جس طرح آپ نے ایک بات کی نفرت کا اظہار کیا گیا، تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ بلوچ لیڈرشپ پارلیمنٹ میں بھی رہے، انہوں نے کوشش بھی کی کمپرومائز کرنے کی، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اب تک جاری ہے؟
देखिए, अगर मैं आप हिस्ट्री में जाए ना, तो हिस्ट्री जो तारीख है उसका मुतालिया ही जो है उससे आपको इन सब सवालात का जवाब मिलेगा। जो बलोचों की जो तहरीक थी, उस तहरीक में 1958 में जो मार्चरा लगा था तो उसको तस्लीम नहीं किया बलोचों ने, और 1 यूनिट जो था उसने बलोचिस्तान का तशख्खुस छीन लिया था। और यही जो लीडरशिप है, इसने 1960 में ये नवाब खैर बख्श मरी भी असम्बली के मेंबर थे, अताउल्लाह मेंगल साहब भी असम्बली के मेंबर थे। उसके बाद जब ये 1971 में इलेक्शन हो गया तो ये सब लोग जब असम्बलियों में आए और बलोचिस्तान में और सूबा सरहद में इनकी हुकूमत बन गई, तो उस वक्त आप ये देखें कि ये वही जर्नैल थे। जनरल टिक्का खान कर्नल था 1958 में जब इसने नवाब नरोज खान को गिरफ्तार किया था। अब 1971 में वो आर्मी चीफ था, 1971-72 में वो आर्मी चीफ था, तो उसके तो घुटी में पड़ी हुई थी नफरत। तो अगर आप जुल्फकार अली भुट्टो की किताब र्यूमर एंड रियलिटी पढ़ें, र्यूमर एंड रियलिटी, तो उस किताब में उसने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी फौज के जर्नैल थे और आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक था, इन लोगों ने किस तरीके से भुट्टो साहब को प्रेशराइज किया कि आप बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन करें, हैदराबाद साजिश केस बनाया। और जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी उस किताब में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो SSG थी, पाकिस्तान आर्मी की जो SSG है, जो कमांडोज होते हैं, इन्होंने किस तरीके से अताउल्लाह मेंगल के बेटे असदुल्लाह मेंगल को कराची से बलकशर मजारी के घर से अगवा किया और उसके बाद उसको शहीद करके उसकी लाश को गुम कर दिया। और जब भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ से कहा कि कम से कम अताउल्लाह मेंगल को उसके बेटे की लाश तो वापस करो, तो आर्मी चीफ ने कहा सर आप कह दें कि असदुल्लाह मेंगल अफगानिस्तान भाग गया, वो गैर मुल्की एजेंट था। तो ये प्लान है, ये अभी से ये काम नहीं कर रहे, ये बड़ा पुराना इनका ये है। आमिर साहब, आज की अगर थोड़ी सी बात करें, आज की सूरत हाल में देखें, एक तरफ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत की बात की जाती है, लेकिन जो ग्राउंड में जो रियलिटी है वो ये कि वहाँ पे लोग लापता भी होते हैं, उनकी मशक़शुदा लाशें भी सामने आती हैं, जिनके हवाले से एजेंसीज का नाम भी लिया जाता है, लेकिन इस पर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं की जा रही, बजाय इसके कि बैरूनी मुदाखलत की बात की जाती है। देखे ना, अब यहाँ पर आसमा जहांगीर साहबा जो है वो तो काफी अरसे से लापता अफराद का केस उठा रही हैं, तो अब आसमा जहांगीर साहबा को क्लियरली कत्ल की धमकी दे दी गई है। और कल जो पाकिस्तान के टॉप के जो लॉयर्स हैं, कानूनदान हैं, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आसमा जहांगीर को अगर कुछ जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट होगी और उनका कसूर ये है कि वो लापता अफराद का मसला उठा रही हैं, जो मशक़शुदा लाशें फेंकी जा रही हैं, उस पर एहतजाज कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है और मीडिया है, तमाम तर प्रेशर के बावजूद उसने जो बलोचों के साथ जुल्म और नाइंसाफी है उसके खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज तो नहीं किया और बहुत ज्यादा बलोचों का साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ न कुछ आवाज कुछ न कुछ लोगों ने जरूर उठाई है और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज आइंदा भी उठाई जाती रहेगी। और ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि बलोचों के साथ जो जुल्म है वो असल चीज है। गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान का बलूचिस्तान का असल मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के करप्ट और आकबंदा अंदेश जो फौजी जर्नैल हैं, वो जो जुल्म कर रहे हैं बलूचिस्तान में, वो किसी गैर मुल्की एजेंट से भी ज्यादा बड़ी दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के असल दुश्मन ये फौजी जर्नैल हैं जो बलोचों को अगवा करते हैं, उनकी लाशें फेंकते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भड़काते हैं। गैर मुल्की ताकतें जो हैं उन्होंने इतनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं फैलाई जितनी कि खुद पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों ने बलूचिस्तान में भड़काई है पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पे एक बात बलूचिस्तान बड़े दुश्मन है पाकिस्तान। मीर साहब, बलूचिस्तान के वसाइल की बहुत बात की जाती है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के दौरान यही बात की कि बलूचिस्तान के वसाइल पे गैर मुल्की ताकतों की नजरें, तो क्या आप नहीं समझते कि बलूचिस्तान के वसाइल को बलोचों पर ही या बलूचिस्तान के लोगों पर इस्तेमाल किया जाता तो आज सूरत हाल इस तरह खराब नहीं होती? बलूचिस्तान के वसाइल पे बलोचों का हक है। बलूचिस्तान के वसाइल जो है वो सिर्फ बलोचों पर खर्च किए जाने चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उस पर गैर मुल्की कुव्वतों की नजर भी होगी, लेकिन ज्यादा नजर जो है वो पाकिस्तानी फौज की तरफ जर्नैलों की है। और इसीलिए जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उसने अपने दौरे इक़्तिदार में ये जो बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल हैं ये अपने मनपसंद लोगों में तकसीम किए, जो गैर मुल्की ताकतें थी उनमें तकसीम किए और गैर मुल्की कंपनियों को उसने बगैर टेंडर के बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल तकसीम कर दिए।
तो बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर गैर मुल्की कूदों की नजर भी होगी, मुझे इसका ज्यादा इल्म नहीं है। लेकिन मुझे ये पूरी तरह पता है कि पाकिस्तानी फौज के जो करप्ट जर्नैल हैं उनकी हमेशा से बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर नजर रही है, और इन्होंने ज्यादा लूट मार की है, और इसलिए इन्होंने अकबर बुख्ती को शहीद किया था, क्योंकि अकबर बुख्ती जो है वो जो पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों की हवस थी, लालच था, वो उसको समझ चुके थे और उसकी हमेशा उन्होंने निशानदेही की, इसलिए इन जर्नैलों ने। अब मीर साहब यहाँ पे इन तमाम सूरत-ए-हाल में अब एक सवाल ये बड़ा अहम है कि इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में अब बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल किस तरह बेहतर की जा सकती है, बलूचिस्तान के मसले का हल किस तरह मुमकिन है, आप क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं वाकई इस सूरत-ए-हाल के तनाजुर में, हुक्मरानों के रवैयों के तनाजुर में बलूचिस्तान के मसले का कोई हल आपको नजर आ रहा है? देखें, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है, इसका सियासी हल निकालने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी फौज के वो जर्नैल जो कि हमेशा से गैर मुल्की ताकतों की एजेंटी करते रहे हैं, गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेके अपने लोगों पर जुल्म करते रहे हैं, सबसे पहले इनको बेनकाब करने की जरूरत है। नवाब अकबर बुख्ती के जो कातिल हैं, इसमें सिर्फ एक परवेज मुशर्रफ नहीं है, और भी बहुत से करप्ट जर्नैल मुलव्वस हैं जिनके के बरूने मुल्क में असासे हैं। ये सारे गैर मुल्की एजेंट हैं, गैर मुल्की ताकतों के अलाकार हैं। इनका एहतसाब करने की जरूरत है, इनको अदालत के कटहरे में लाने की जरूरत है, बलूचों से माफी मांगने की जरूरत है, लापता अफराद को रहा करने की जरूरत है। जो लोग बलोचों को अगवा करके कत्ल करते हैं, एफसी के उसमें अफसरान शामिल हैं, इनको भी पकड़ने की जरूरत है। जब ये सब हो जाएगा तो फिर मैं ये कहने का हक रखता हूं कि जी बलोचों से अब मुज़ाकरात करने चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अगर मैं ये कहूं कि जी बलोचों से मुज़ाकरात करो तो ये बलोचों की तौहीन है, उनके साथ नाइंसाफी है, उन पर जुल्म हो रहा है। और अगर हम इस जुल्म को नहीं रोक सकते और कहते हैं कि जुल्म भी होता रहे और मुज़ाकरात भी होते रहे, तो ये साथ साथ नहीं चल सकते। सबसे पहले ये जो फौज के करप्ट जर्नैल हैं, माजी के और हाल के, जो गैर मुल्की एजेंट हैं, गैर मुल्की ताकतों के अलग हैं, इन हल होगा। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के में ज्वाइन किया।